عربی کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں صرف حروف سے کام لیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور جو ہے وہ حروف ایک ایک صفحے میں اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ لیکن جو انگلش سیکھنے کی یا نئے زمانے کی جو کتابیں ہیں اور ایجوکیشن کی، اس میں آپ دیکھیں گے حرف کم ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشابہ بہت سی تصاویر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ انگلش کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اے فور ایپل، تو ایپل کا فوٹو دیا ہوگا، لیکن عربی ایک کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے جو آج کل کی کتابیں ہیں اس میں الف سے انگور لکھا ہے اردو کی کتابوں میں، لیکن جو عربی وغیرہ کتابیں بہت ہی کم کتابوں میں اس طریقے سے فوٹوؤں کا استعمال کیا ہے، سینریوں کا استعمال بہت ہی کم کیا گیا ہے، اس سے ہمارے بچے تھک جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انگلش یا اپڈیٹ یا نئے زمانے کی جو ایجوکیشن کی کتابیں ہیں کسی بھی لینگویج کی، وہ ایک چیز کو اگر سکھاتے ہیں تو اس کی 5 6 مثالیں دیتے ہیں، لیکن ایگزامپل اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ مگر جو عربی ہے وہ سنتی روش ہے، قدیمی روش ہے، اس میں مثالیں بہت ہی کم دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی سیکھنے کی لہٰذا ہمارے بچے ان مثالوں کو سیکھ نہیں پاتے، ان کی ذہن میں یہ بات بیٹھ نہیں پاتی۔ ہم کوشش کریں گے 6 جلسے سے چاہے جتنا بھی ہو جائے، لیکن ہمارے بچے سیکھ جائیں اچھے طریقے سے۔ لیکن میں نے یہ بات عرض کی تھی، جن کے پاس ٹائم کم ہے وہ 6 جلسے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹائم کم ہے اور ذہن تیز ہے اور محنتی لوگ ہیں، لہٰذا اس قاعدے سے ہٹ کے دیکھیے۔ حرکت یا علامت کی پہلی قسم تھی فتحہ۔ پھر ایک دفعہ میں کہہ دوں، اس فتحے کی تمرین کریں گے، ایک ایک حرف کو لے کر آئیے گا اور تمرین کیجئے گا۔ آج الف سے شروع کیجئے، تو الف کے اوپر فتحہ اور اس کے بعد با کو لکھیے، با ساکن ہے تو کیا اس کی آواز ہوگی؟ الف پہ فتح ہے اور با ہے تو اب۔ جس طریقے سے انگلش میں اگر اے ہے اور اس کے بعد بی ہے تو اس کی آواز اگر میں آپ سے کہوں اس کو پڑھیے تو آپ اب پڑھیں گے، تو یہ بھی اب ہی آپ پڑھیے۔ اس کے بعد جو آپ کی کاپی ہے اس میں آپ لکھیے الف پہ فتح اور تے، ات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الف اور یہ فا، اف، الف اور جیم، اج، الف، ہا، ہا یہاں سے نکالیے، اح، الف پہ فتح ہے اور یہ خا ہے تو اخ، الف پہ فتح ہے اور دال ہے اد، الف اور دال ہے از۔ میں یہاں پر ایک جملہ بہت آگے کی ہے، ڈرتا ہوں کہ آگے کی چیز ابھی بیان کر دوں، لیکن کبھی بھی ایسا بھی لگتا ہے کہ بہت سارے ہمارے آنے والے مہمان اچھی طریقے سے جانتے ہیں، شاید وہ یہ سوچیں آج کوئی نئی بات ہم جو ہے جان لے۔ البتہ ہو سکتا ہے یہ بات ان کے لیے بھی نئی نہ ہو، لیکن ان سے تھوڑا سا نیچے علم رکھنے والوں کے لیے نہیں ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، 5 حرف، البتہ کچھ کا مطلب لہذا ڈائریکٹ کہوں، 5 حروف عربی کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں گے تو آخر میں ایکو آواز ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ایک پہاڑ کے سامنے آپ کھڑے ہو کے اگر آپ کہیں گے اللہ اکبر تو وہاں سے آواز آئے گی بر 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 بر، یا اسی طریقے سے گڑھے کے اندر کیا بولتے ہیں، سراہی کے اندر، گڈھا نہیں سراہی کے اندر اگر آواز دیں گے، یا خالی بند روم کے اندر آپ اگر آواز دیں گے تو ہلکی سی آواز ایکو ہوتی ہے۔ اس ایکو آواز کو کہتے ہیں قلقلہ، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ کے مطلب کیا ہے کہ آخر میں ایکو ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ یہاں چونکہ ہم آئے ہیں لہٰذا اس کو میں یہاں پر بیان کر دوں۔ آپ لوگ الف دال، الف را، الف زا آٹومیٹک لکھ ہی لیں گے گھر میں، اتنا مجھے یقین ہے۔ امپورٹنٹ بات ابھی بیان کر دوں، زال تک ہم جو ہے وہ رک جاتے ہیں، اگر ضرورت پڑی اور وقت رہا تو ہم جو ہے اس کو لکھیں گے اور پڑھیں گے۔
जी हाँ, वो हुरूफ क्या है और कैसे आवाज़ होगी। देखिए, चूंकि आप हजरात सभी नमाज पढ़ते हैं और मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितने भी कुरान के आशिकीन इस क्लास में जुड़ते हैं सभी नमाजी हैं, लिहाजा नमाज में ज़रूर आप इन हुरूफ को, इन अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं। जब यूज़ करते हैं तो सही से यूज़ कीजिए, क्यों आप जो है वो सही यूज़ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में सबसे ज़्यादा वो हुरूफ पाए जाते हैं, लिहाजा आपको जानना ज़रूरी है वो कौन से हरूफ हैं और किस तरीके से जो है वो इको होती है, वो भी मैं बता दूं। मिसाल के तौर पर काफ है, ये 2 नुक्ता वाला काफ, ठीक है। आपके ये हक, उर्दू में कहेंगे हक, लेकिन अरबी में हक को, ये जो आखिर में ऐसा लग रहा है जैसे डबल काफ कहा है। इतना भी गलीज मत कहिए कि डबल काफ हो जाए और तशदीद की अलामत समझ में आए, लेकिन इतना भी कम मत कीजिए, हल्का सा इको होना चाहिए, हक को। लिहाजा जितने भी आप कारियान कुरान को देखते होंगे कि जो तिलावत कुरान मजीद कर रहे हैं बेहतरीन अंदाज में, जब वो रुकते हैं हक को, इस तरीके से एक आवाज़ आती है। लिहाजा पहला वो हर काफ है। अब याद रखिए, जहां भी आप नमाज हो, कुरान हो, कहीं भी अगर इस काफ पर रुकते हैं, फिर मैं अर्ज कर दूं, इन हुरूफ पर अगर आप वक्फ करते हैं, ठहरते हैं, क्या मतलब, यानी आपके सेंटेंस के आखिर में आता है और जेर ज़बर पेश कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है, अलबत्ता जेर ज़बर पेश भी हो तो उसी के साथ, फर्ज कीजिए इसके ऊपर अगर फतह है तो हक का अगर आपको कहना पड़ा, या ज़म्मा है तो इस तरीके से आप बहरहाल उस ज़म्मा फतह ये बाद में आएगी कि किस तरीके से हम वक्फ करेंगे। वक्फ का कायदा मैं बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह। लिहाजा आज इतना समझ लीजिए कि जब भी आखिर में ये हरूफ आएंगे, 5 हरूफ हैं, तो ये इनकी आवाज़ ईको की तरह, हक, फिर एक दफ़ा मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। इसके बाद जो है ता है जी। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए आपने कहा सिरात, ये उर्दू है, लेकिन अरबी सिरात, अगर रुकना है, नहीं रुकना है तो सिरातल्लज़ीना अनअमता, इस तरीके से आप पढ़िए। मगर अगर रुकना है जैसे वसीत, ठीक है, तो वहाँ वसीत का लफ्ज़ है, वाव, सीन, या और ते, जी वसीत। तो अब यहाँ पर जो ता है इसको आप वसीत मत कहिए, बल्कि क्या कहेंगे, वसीत। फिर अर्ज कर दूं, वसीत, एक ई को एक कलकला ईजाद होगी। और क्या है, बे है। देखिए बहुत ही ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल होने वाला एक हर्फ है बे। जी हाँ, जिस तरीके से कुरान मजीद में है हुब, अब आप हुब मत कहिए, हुब कह के रुक मत जाइए। बे को तकरीबन कलकला 2 मरतबा ईको की तरह, हुब। जी हाँ, रब, आप रब मत कहिए, रब नहीं, रब, ब। ऑलरेडी आपकी आवाज़ ईको होती चली जाएगी। थोड़ा सा समझने की, सिर्फ कितने हैं, 5 ही तो हर्फ हैं, इसको हम अच्छी तरीके से अदा कर दें। अगर कुरान मजीद का सूरा हम नमाज में पढ़ रहे हैं तो खुदा को ऐसे अदा कर दें जैसे अदा करने का हक़ है, जितना हमसे कम से कम हो सके। लिहाजा रब्बिल आलमीन जैसे है ना, तो रब्बिल वहाँ तो ऑलरेडी जो है तशदीद है, लेकिन इस रब पे अगर आप कहीं भी रुकना चाहें तो रब, हुब। जी हाँ, उसके बाद जो हर्फ है वो जीम है। जी, आप उर्दू में कह सकते हैं हज, लेकिन अरबी में नहीं, हज। ये जो आखिर में ज की आवाज़ हल्की सी ईको की तरह डबल लग रही है आपको, ये लाना ही पड़ेगा। हज, मरज। जी, और एक हर्फ आखिर में वो है दाल, जो सूरह कुल हुवल्लाह में बहुत ज़्यादा है। अब पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। आप जैसे रसूल अकरम का अगर नाम लेते हैं तो प्योर अरबी में अगर आप नाम लेते हैं तो आपको कहना पड़ेगा अहमद, इसको कलकला कहते हैं। इस आवाज़ को यानी ई को टकरा के 2 मरतबा दिखाई देने वाली, लिहाजा
इन हरूफ पर अगर आप स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, आखिर में आएगा और बगैर किसी ज़ेर ज़बर फतहा, और अरबी में कहते हैं यानी फतहा ज़म्मा कसरा के बगैर, तो इसको जब भी आप लाएंगे कलकले के साथ, इको के साथ, डबल आवाज़। जी हाँ, ये कितने हैं? एक उसमें आप याद कर सकते हैं कुतुब जद, कुतुब जद, ये 5 हरूफ हैं जिनको आपको आवाज़ जो है वो कलकला की निकालनी है। कलकला मैं लिख कर दिखाता हूँ। काफ लाम है, काफ लाम पे साकिन है और काफ कल, फिर काफ पे फतह है और लाम पे फतह है और ये है कलकला। जी हाँ, इंग्लिश में आप जो है वो इस तरीके से काला, आप कलकला हरूफ को लिख लीजिए, 5 है, और सिर्फ लिख मत लीजिए, इसकी तमरीन कीजिए। खुसूसन मेरे बच्चों सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में बहुत ज़्यादा है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा पुररंग और गलीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप दा मत कर दीजिए, यानी डबल मत कर दीजिए, तशदीद मत कर दीजिए, लेकिन हल्का इको होना चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दाल की आवाज़ कलकला मोटी होगी। तो ये कलकला को आप समझ चुके हैं। चलिए फिर उसके बाद फतह को हम जो है वो इदामा देते हैं। अलिफ पे फतह है और रा है, आवाज़ क्या होगी? आर। अलिफ पे फतह है और जा है, जा एक नुक्ते से हम समझेंगे कि रा और जा में फ़र्क क्या है, तो अज है। उसके बाद जो है अलिफ है और सीन है, अस इसकी आवाज़ होगी। अलिफ पे फतह है और शीन है, अश। अलिफ है और स्वाद है, आवाज़ होगी अस। अलिफ पे फतहा और ज़ाद है, आवाज़ होगी अज। उसके बाद अलिफ पे फतहा और पा है, आवाज़ होगी अत। अलिफ पे फतहा और ज़ा है, ज़ा, लिहाजा इसकी आवाज़ होगी अज। उसके बाद अलिफ है और ऐन। जी हाँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान देना है। अलिफ है और उसके बाद ऐन है। अलिफ की आवाज़ एकदम जो है वो आराम से आ, लेकिन ऐन की आवाज़ हल्क से आ ऐसे निकलेगी। लिहाजा यहाँ जब आप अलिफ और ऐन को साथ में पढ़ते हैं तो आपको समझाना पड़ेगा कि इसको मैं हल्का खफीफ आवाज़ में तलफ़ुज़ कर रहा हूँ और इसको गलीज़ और गाढ़ा करके और हल्क से निकाल के बोल रहा हूँ। कैसे? आ। जी हाँ, क्यों? इसलिए कि आपको सूरह इन्ना आतैना ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, और उसमें खालिक़ कायनात ने क्या लिखा है, देखिए इस तरीके से लिखा है। इन्ना क्या लिखा है कुरान मजीद में? इन्ना, ये नून है जी, आ तई ना का